Okay, so most of them are saying, most of the students are saying D. So I won't disclose the answer right now. At the end of the session, we'll see. Next question. 1 gram of hemoglobin can combine with. Okay. Chalo, so these were the questions that we'll discuss. The answer will be discussed later on. Okay. Coming to red blood cell. Now, red blood cell constitute 99% of the cellular component of the blood. In the last term, we talked about the composition of the blood, and we said that blood is composed of the liquid part, the plasma, and the cellular part. Okay, and the plasma consisted about 55% of the total blood volume, and the cellular part was 45%. Now, of that cellular part, 45%, 99% is द आरबीसी. ओके, जितने भी ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, जो सेल होते हैं, उसका 99% आरबीसी होता है. रेस्ट 1% इज द डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. And a peculiar feature of RBC is that it lacks a nucleus. It lacks a nucleus and contain a protein which is known as hemoglobin, a red iron rich protein, hemoglobin, that is required to bind the oxygen. Okay, so the RBC is a non-nucleated cell. It doesn't have a nucleus. Okay, and it functions in the transportation of oxygen to cell and tissue. This we had already discussed the role of blood. So this role of blood, that is gaseous transport, is mediated by the RBC. Okay, it carries oxygenated blood from the lung to different tissues of the body, and then carbon dioxide from different tissues of the body back to the lung. Okay, for the gaseous exchange. And in this process, the function of this the RBC, that is gaseous transport, the hemoglobin aids in this function of the RBC. Hemoglobin is the one responsible for binding the oxygen and carrying it to different parts of the body. Okay, now there is a term known as hematocrit. Okay, or it's also known as packed cell volume. So what does hematocrit or packed cell volume denotes? It's one of the important investigation. Many a time when you do a blood count, or what you say CBC, complete blood count, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों में इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसको कहते हैं हम CBC or the complete blood count. So when you perform a complete blood count, this is a part of that investigation, hematocrit, or it's also known as packed cell volume, PCV भी बोलते हैं इसे. What is hematocrit? Hematocrit is nothing but percentage of RBC in a known blood volume. मतलब आप एक कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड लें, उसमें आरबीसी कितना परसेंट है, वो हेमाटोक्रिट कहलाता है, या पैक्ड सेल वॉल्यूम. हेमाटोक्रिट निकालते कैसे हैं? वैसे ही जैसे लास्ट टाइम में बताया था, नोन ब्लड वॉल्यूम को लेके आपको हाई स्पीड में रोटेट करना है, सेंट्रीफ्यूज कर देना है, तो सारे आरबीसी और जितने डब्ल्यूबीसी वगैरह सब नीचे सेटल हो जाएंगे, ऊपर जो है वो प्लाज्मा रह जाएगा. ठीक है, तो नीचे जितने सेटल हो गए उनको हम मेजर कर सकते हैं कि वो टोटल ब्लड वॉल्यूम के कितने परसेंटेज. ठीक है, बट हेमाटोक्रिट में यू हैव टू नो दैट वी डोंट इंक्लूड द बफी कोट, दैट इज द लेयर ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. ये हम हेमाटोक्रिट में इंक्लूड नहीं करते. हेमाटोक्रिट सिर्फ आरबीसी को कंसिडर कर रहे हैं हम हेमाटोक्रिट में. सो हेमाटोक्रिट इज परसेंटेज ऑफ आरबीसी ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम. आप एक नोन ब्लड वॉल्यूम ले रहे हैं, उसमें आरबीसी कितना है, दैट इज हेमाटोक्रिट. ठीक है, तो नॉर्मली अडल्ट मेल जो होते हैं उनमें ये 42 to 54% तक होता है, रेंज होती है 42% to 54%, एंड अडल्ट वुमेन में 38% to 45%.
46% के अराउंड 38 to 46% है। ठीक है, ये एडल्ट मेल और एडल्ट वुमेन में होते हैं। वुमेन में आरबीसी कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं मेल से, इसलिए हेमाटोक्रिट भी कम होता है। जब आरबीसी कम होते हैं तो आरबीसी का वॉल्यूम परसेंटेज भी कम होता है। ठीक है, सो दिस इज हेमाटोक्रिट एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन डन स्पेशली फॉर एनीमिया। जब हम एनीमिया सस्पेक्ट करते हैं तो हम ये हेमाटोक्रिट करवाते हैं, उससे पता चलता है कि कितना है आरबीसी टोटल वॉल्यूम। Now coming to morphology of RBC, morphology मतलब shape, ठीक है, shape and structure. Now RBC is a flexible biconcave disc-like cell. Biconcave है, जैसे कि आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है यहाँ वीडियो में, क्रॉस सेक्शन 20 से कटा हुआ, उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो RBC 20 से काट के यहाँ पे फोटो आपको दिखाई जा रही है, तो यू कैन सी इट्स अ बाइकनकेव, यानी दोनों तरफ इसके कॉन्केविटी है। जैसे कॉन्केव लेंस होता है वैसे कॉन्केविटी है, अंदर की तरफ है। ठीक है, सो देयर इज कॉन्केविटी, अ डिप्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इट इज अ डिस्क लाइक सेल। ठीक है, and the diameter of RBC ranges from 6.4 to 8.2, एवरेज 7.5 माइक्रोमीटर के अराउंड रहता है। बट ऐसा नहीं कि 7.5 माइक्रोमीटर इज फिक्स, ये एक रेंज है, 6.4 से 8.2 तक हो सकता है। कुछ सेल छोटे हो सकते हैं, कुछ सेल बड़े हो सकते हैं। थिकनेस इसकी वैरी करती है क्योंकि ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है, तो पेरिफेरी पे ये थिक होता है, सेंटर पे थिन होता है। जहां पर ये मोस्ट थिक होता है वहां तकरीबन 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और जहां पर कम होता है वहां 1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इज 90 to 95 माइक्रोमीटर क्यूब। हालांकि ये 90 to 95 कुछ ज्यादा प्रिसाइज है, यूजुअली हम 80 to 100 फेम्टोलीटर मानते हैं। ठीक है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इज कंसिडर्ड 80 to 100 फेम्टोलीटर। फेम्टोलीटर कितना होता है, कोई बता सकता है? फेम्टो जो लगा रहे हैं हम प्रीफिक्स, फेम्टो क्या डिनोट करता है, किस पावर को डिनोट करता है फेम्टो? 10 to the power minus 10 15. to the power 5. 10 to the power minus 15, right? हुज़ैफा ने लिखा है -15, दैट्स राइट, 10 to the power minus 15। एंड ठीक है, चलिए, और भी लोगों ने लिखा है 10 to the power minus 15। सो दैट्स द फेम्टो। तो नॉर्मली आरबीसी का वॉल्यूम यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज करके लिख दिया गया है, 90 to 95 माइक्रोमीटर क्यूब, पर ये 90 to 95 से थोड़ा और भी रेंज होता है, 80 to 100 फेम्टोलीटर मानते हैं। This is how an RBC appears on 400x magnification, 4000x magnification. 4000x means it has been magnified to 4000 times. ठीक है, अगर 4000 टाइम आप मैग्नीफाई करेंगे आरबीसी को, देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आरबीसी ऐसा दिखेगा। एंड द नेक्स्ट पिक, द फर्स्ट पिक्चर, okay, in the first picture, this picture, it is 4000x magnification of RBC, and the second picture is a cross section of a capillary. ये कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और उसमें वो आपको आरबीसीज दिखते हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैपिलरी है, कैपिलरी को कट करके आपको दिखाया गया। क्लियर? ओके, now what's the advantage of the biconcave shape of RBC? RBC biconcave है, न्यूक्लियस है नहीं उसके अंदर, तो उसके वजह से उसके पास ऑप्शन है कॉन्केविटी लाने की, कि सेल के ज्यादातर ऑर्गेनल्स होते नहीं है आरबीसी में, न्यूक्लियस भी होता नहीं है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, सो द सेल कैन गेट कॉम्प्रेस्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई द आरबीसी इज लाइक अ बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर एंड नॉट ए स्फेयर। अगर सारे ऑर्गेनल्स उसके अंदर होते तो शायद उसको स्फेयर होना पड़ता, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स आर मिसिंग, so it can get compressed. Now, what is the advantage of this biconcave shape? First is this biconcave shape imparts flexibility to the cell. ठीक है, अगर वो बहुत राउंडेड फूला सा होता
तो शायद वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। बाइकॉन्केविटी इम्पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल। ओके, जो कैपिलरीज होती हैं बॉडी में, बहुत सारी कैपिलरीज इतनी होती हैं जो 3.5 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती हैं, और आरबीसी का मैक्सिमम डायमीटर हमने आपको बताया था अराउंड 8 होगा, 6.2 से 8.4 तक जाता है। तो अगर आरबीसी अपने फुल शेप में रहेगा तो कैपिलरीज के अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कैपिलरीज आरबीसी के डायमीटर से भी नैरो होती है। सो आरबीसी स्क्वीजेस इटसेल्फ, डिफॉर्म होके अपने आप को कंप्रेस करके उसके अंदर स्क्वीज कर जाता है। तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस बाइकॉन्केव शेप इज this shape imparts flexibility to the RBC, and the RBC can then change or deform itself। ठीक है, दूसरा क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसे अंदर अंदर कर्वेचर रहता है तो उससे सरफेस एरिया थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तीसरा है कैन विथस्टैंड चेंजेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, लास्ट हमने जो पढ़ा था, सॉल्वेंट का प्रेशर, वाटर का मूवमेंट इन एंड आउट, उसके वजह से, सोल्यूट के वजह से जो सॉल्वेंट का मूवमेंट इन एंड आउट हो रहा है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है सोल्यूट, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो आरबीसी के अंदर अगर जो सोल्यूट है उनकी वजह से भी कुछ प्रेशर क्रिएट होगा। नाउ वाटर कैन एंटर द सेल और कैन लीव द सेल। अगर वाटर सेल के अंदर एंटर करता है, सपोज आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, कंसंट्रेटेड हो रहा है थोड़ा अंदर, तो वाटर बाहर से आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। दिस शेप, बाइकॉन्केव शेप, इट कैन विथस्टैंड लार्ज चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर बहुत सारा वाटर अंदर गया भी तो ये शेप बर्दाश्त कर सकता है उस वाटर को। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर आरबीसी पहले से राउंड होता, ठीक है, अगर आरबीसी पहले से राउंड सा होता ऐसे करके, तो उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता स्वेल करने का। अगर पानी जब बाहर से अंदर जाएगा, पानी जब बाहर से अंदर जाएगा तो वो सेल स्वेल करेगा। ठीक है, अगर वो पहले से राउंड सा होता आरबीसी, तो फिर उसके बाद स्वेल करने का ऑप्शन नहीं होता, कि जो चीज पहले से गोल है वो और कितना स्वेल करेगी, वो तो गोल है ही। ठीक है, तो वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है या टूट सकता है अगर वाटर ज्यादा जाएगा। लेकिन जब वो आरबीसी कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है, डिस्क शेप्ड है, ऐसे करके कॉम्प्रेस्ड है ऐसे, तो अभी इसके पास एक्सपैंड करने की बहुत जगह है, ये दबा हुआ है। अब वाटर जाएगा तो ये पहले ऐसे बनेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है, फिर और एक्सपैंड करेगा, तो इसके पास बहुत सारी जगह होगी एक्सपैंड करने की, तब तक जब तक ये फट ना जाए। तो ऑप्शन बहुत है। ठीक है, क्लियर? So this shape, through this shape, RBC can withstand an increase in osmotic pressure. ठीक है, एक और एडवांटेज पे आते हैं, allows easy exchange of O2 and कार्बन डाइऑक्साइड and ऑक्सीजन and rapid diffusion। तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, कोई स्फेरिकल होता है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ये कहते हैं कि इसके इस डिस्क शेप की वजह से सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, एंड व्हेन the surface area is increased, so the amount of oxygen or carbon dioxide diffusing in and diffusing out, that also increases। ठीक है, now there is a protein called spectrin। okay, spectrin is the protein that is responsible for maintaining the shape and flexibility of RBC। ठीक है, this spectrin protein is a very contractile protein। ये मतलब कॉम्प्रेस हो सकता है, elongate हो सकता है, इलास्टिक नेचर होता है स्पेक्ट्रिन का। So this spectrin is present on the surface of the RBC, and they confirm the flexibility, they provide the flexibility or the RBC, okay, they maintain the shape and flexibility of the RBC, spectrin protein। Now coming to normal counts, कितने होते हैं RBC? सो आरबीसी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन्हें जो हम मेजर करते हैं वो हम कैसे मेजर करते हैं, मिलियंस ऑफ सेल
पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, यानी कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड लो, वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं ना, तो मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। तो अगर आप 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड सैंपल लेते हैं, इतना ब्लड लेते हैं जो 1 मिलीमीटर क्यूब, मतलब एक आप छोटा सा कोई कंटेनर लें जिसके सारे मेजरमेंट्स 1 mm हो, हाइट 1 mm, ब्रेथ 1 mm एंड डेप्थ 1 mm, तो वो उसमें जो ब्लड आएगा वो 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड हुआ। उस 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने आरबीसी होंगे वो हम नॉर्मल काउंट बोलते हैं इस तरह से। सो एट बर्थ द आरबीसी काउंट इज यूजुअली मोर एज कंपेयर टू एडल्ट, 6 to 7 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, ये आरबीसी काउंट होता है बर्थ पे, ठीक है। एडल्ट मेल्स में 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, और एडल्ट फीमेल्स में 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। मेल्स they have a slightly more RBC number as compared to females, ठीक है। उसके जो रीजन बताए जाते हैं वो बताया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में होते हैं that helps in the production of RBC, थोड़ा स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़ी आरबीसी ज्यादा होती है। ये रिक्वायरमेंट भी होता है मेल्स में, मेल्स आर कंपैरेटिवली मोर मस्कुलर एज कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल से थोड़ा ज्यादा मसल मास होता है मेल्स में, सो मोर मसल मास मीन्स मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, सो मोर आरबीसी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, जो पहाड़ों पे रहते हैं लोग, ऊंची जगह पर रहते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में शिमला, कश्मीर, इन सब जगह जो ऊंची जगह पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर भी आरबीसी ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है? प्रेशर ऑक्सीजन घट जाता है सर। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ऊंची जगह पे हाई ऑल्टीट्यूड पे घटा हुआ होता है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी का ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है कि जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन आपको मिल ही कम रहा है, तो ऑक्सीजन कैरियर्स बढ़ा दिए जाए, तो इसीलिए आरबीसी दे आर ऑक्सीजन कैरियर्स, तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बाद में हम पढ़ेंगे हाई ऑल्टीट्यूड फिजियोलॉजी, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन ऑफ आरबीसी। सो in men 15 gram of hemoglobin is there per 100 ml of blood, and women 14 gram is there। और ये क्वेश्चन हमने पूछा था कि how much oxygen can be carried by 1 gram of hemoglobin, so 1 gram of hemoglobin can combine with 1.34 ml of oxygen, okay। so अगर आप 15 को 1.34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। so in adult male the maximum oxygen that can be carried by 100 ml of blood is 20 ml. In adult female, it's 19 ml. Now coming to erythropoiesis. Erythropoiesis means the synthesis of RBC or the production of RBC. Erythros means red and poiesis means genesis, to make. Okay, so erythropoiesis means the process of RBC formation. ठीक है, और द रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। सो वी विल डिस्कस एरिथ्रोपोइसिस नाउ, हाउ द आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, किन किन जगह बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, कहां कहां होता है, ठीक है। So during intrauterine life means when the person is inside the mother's womb, ठीक है, जब यूट्रस के अंदर, intrauterine means inside the uterus, ठीक है, तो when the person or the baby is inside the mother's womb, उसे intrauterine life बोलते हैं, ठीक है। सो इंट्रायूट्राइन लाइफ को दूसरा नाम जो है वो मीजोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं, या इंट्रावास्कुलर स्टेज ही बोलते हैं। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ योग सैक, ठीक है, योग सैक में प्रोडक्शन होती है आरबीसी की, और ये आरबीसी न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं, क्लियर। योग सैक जो होता है, योग सैक इज अ पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा,
Placenta is a part of the yolk sac. Ulta bol diya. Yolk sac is basically a sac inside which the embryo is there, the fetus is there. Okay. So yolk sac produces the RBC during intrauterine life, and this is known as the mesoblastic stage or the intravascular stage. ठीक है, और ये 3 वीक टू 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक चलता है. ठीक है, 3rd वीक से 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. 3rd वीक से पहले तक ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होता है, जरूरत ही नहीं होती. वो छोटे सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. 3rd वीक से प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. तो 3rd वीक टू 3 मंथ द ब्लड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द yolk sac. Okay, and these RBCs, they are nucleated. ठीक है. Now after third month of pregnancy की बात हो रही है. This is intrauterine life. ऊपर की heading पे ध्यान दो, during intrauterine life. So the child is not born yet. The child is inside the mother's womb. So after 3 months is the liver and spleen. It takes the function of producing the RBC. So this stage is known as hepatic stage. Hepatic refers to liver. पर सिर्फ लीवर नहीं होता है, स्प्लीन भी करती है यहाँ पे. सो आफ्टर 3 मंथ आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड स्प्लीन. ठीक है, ये आपको बगल में एक पिक्चर दिखेगा, वहां ग्रॉस एनाटॉमी दिखेगी कि लीवर और स्प्लीन के पोजीशंस बॉडी में कहाँ होते हैं. ठीक है. देन फ्रॉम 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टिल बर्थ, बोन मैरो ऑफ द बोन के अंदर एक सेमी लिक्विड सी चीज होती है. सेमी सॉलिड कह सकते हैं, नॉट सेमी लिक्विड, थोड़ा सॉलिड सा होता है, पर सेमी सॉलिड सी चीज होती है बोन मैरो. सो आफ्टर 20th वीक एंड टिल बर्थ, बोन मैरो टेक्स द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग आरबीसी एंड दिस इज नोन एज माइलॉइड स्टेज. ओके, सो दीज 3 स्टेज, mesoblastic, hepatic and myeloid, they are happening before birth. Okay, intrauterine life, the baby is inside the uterus. Okay. Now once the person is born, or the baby is born, what happens thereafter? So in children till 5 years of age, bone marrow of all bones, each and every bone in your body. So till 5 years of age, bone marrow of all bones, they produce RBC. Okay. Then from 5 years till 20 years of age, marrow of only long bones produce RBC. Long bones कौन से होते हैं? जैसे ह्यूमरस हुआ. ठीक है, ह्यूमरस आप लोगों के एनाटॉमी तो क्लास बढ़ा दी गई होगी, बोन्स के नाम तो पता होंगे. ह्यूमरस है, humerus, femur, radius, ulna, tibia, they all are long bones. Okay. So after 5 years till 20 years, marrow of only long bones, they produce RBC. And in adults after 20 years, ये तो 20 years की बात हुई. After 20 years क्या होता है? 20 साल के बाद proximal portion of the long bones, proximal means जो बॉडी के नियर हो, बॉडी के सेंटर के नियर हो. तो proximal portion of humerus, femur and tibia, okay, they produce only the proximal part, and skull, vertebrae, ribs, sternum and pelvis, they are involved. So after 20 years, proximal part of the long bones and skull, vertebrae, ribs, sternum, pelvis, they are involved. Now this skull, vertebrae, ribs, sternum, pelvis, they are also known as membranous bones. So you can say after 20 years, majority of the RBC production is taken over by membranous bones. Okay. Before 20 years, the long bones were involved. After 20 years, only proximal portion of the long bones, but majority of the function is carried out by membranous bones. Okay. So this graph basically shows the age-wise site of erythropoiesis. The yellow part of the graph
this yellow part, the first yellow part or the yellow part shows the intrauterine life. Intrauterine life, the production happens in the yolk sac, that is the mesoplastic stage, the first part. Then after 3 months, majority of the production is taken over by liver and spleen, so that is the hepatic stage. And then from 3rd month onward till birth, majority of the production is taken up by the bones, so it is known as the myeloid stage. Now after birth, this I don't think I need to repeat. We have discussed this, so I won't waste time. But just you look at the bones, ribs, sternum, vertebrae. They are the primary bones that take up the production after 20 years. Okay, before 20 years, the long bones were the primary production center. Okay. Now coming to stages of erythropoiesis, means how the RBCs are formed, different stages. Sites की हमने बात कर ली कि कहाँ कहाँ बनते हैं. अब हम स्टेज की बात करते हैं. So the first cell that is formed inside a bone marrow, whether be it of the long bones or the membranous bones. So the first cell that is formed is known as pluripotent hematopoietic stem cell. ठीक है, pluripotent cells किसे बोलते हैं? Pluripotent cells are those cells which can give rise to any other cells. ठीक है, ये stem cells होते हैं. Stem cells जो हैं बॉडी के वो cells होते हैं जो बहुत ही अर्लियर वर्जन होता है, जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी सेल में. ठीक है, वो सेल फर्दर डिफरेंशिएट करके आपकी बॉडी के कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू सेल से ही बना है. स्टेम सेल्स, खासकर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, yes, lymph nodes are site of RBC production, but not that much. लिम्फ नोड में ज्यादातर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, प्रोडक्शन भी होता है, बट लिम्फ नोड एंड स्प्लीन इन एन एडल्ट, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, दे आर साइट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. बेसिकली प्रोडक्शन में थोड़ा एड करते हैं लिम्फ नोड में. You are right, Suman Rajput is saying that lymph nodes are also site of RBC production. I agree, but they don't contribute that much as the bones. Okay, so pluripotent hematopoietic stem cell is the most primitive or the earliest cell. ठीक है, pluripotent cells एक pluripotent stem cells होते हैं. Pluripotent stem cells can give rise to any other cell of the body. वो कुछ भी बना सकते हैं वो cells आगे चल के. फिर एक होते हैं pluripotent hematopoietic stem cells. Now pluripotent hematopoietic stem cells are those cells that can give rise to only blood cells. Hematopoietic जब कह दिया इसका मतलब कि blood production के लिए specific हो गए. ठीक है. So the first cell in the production of RBC is hematopoietic stem cells. They are bone marrow cells that are capable of producing all types of blood cells. ठीक है, ये hematopoietic stem cells से RBC भी बन सकते हैं, WBC भी बन सकता है, platelet भी बन सकता है. ठीक है. So look at this graph. You can get this in the Guyton also. It's clearly there in your Guyton. It's taken from the Guyton. So the first cell is this one, pluripotent hematopoietic stem cell. Okay. Now right now we are discussing the RBC, so we won't look down. नीचे WBC की बात हो रही है, तो हम उसको नहीं बात करते. हम ये जो इस साइड चल रहा है उसकी बात करते हैं. So pluripotent hematopoietic stem cell give rise to another type of cell which is known as colony forming unit spleen, CFUS. ठीक है, colony forming unit spleen. This colony forming unit spleen, it give rise to a cell known as colony forming unit blast. ये सब जो और सेल्स आप देख रहे हैं, CFUGM, CFUM, ये सब WBC और प्लेटलेट का है. इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ने बनाया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, फिर इसने बनाया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, फिर ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट बना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एथ्रोसाइट.
और इसने मल्टीपल स्टेजेस के बाद, इतना सिंपल नहीं है कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट ने सीधा एरिथ्रोसाइट बना दिया, इसके बीच में और कई सारे स्टेज होते हैं यहाँ पर. So after multiple stages that we are going to learn in the next slide, erythrocyte is formed. तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ PHSC, CFUS, CFUB, CFUE, and then through multiple stages you have erythrocyte. ठीक है, तो erythropoiesis की अगर बात होगी तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. Let me mark you as a number. ये 1 होगा erythropoiesis का, ये 2 होगा, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4, एंड देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन बिटवीन. यहां पर बहुत सारे स्टेप होते हैं जो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. उसके बाद एरिथ्रोसाइट बनेगा. ठीक है, क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर है? अंगूठा दिखाओ सब. ओके, चलो, गुड. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो जो हमने कहा था कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट के बाद कई सारे स्टेज हैं, उसके बाद एरिथ्रोसाइट बनता है, तो वो ये है. सबसे पहला, ये कंप्लीट है एरिथ्रोपोइसिस. सबसे पहला सेल जो है ये प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है. फिर बस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट है. यहां पर आप कहेंगे कि बस्ट फॉर्मिंग यूनिट, इसी को CFUB जो है ना, ये CFUS और CFUB, इन दोनों को कंबाइंड कह दिया गया है बस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट. ठीक है, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, आप अलग से लिख लेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, इन दोनों को कंबाइंड हम बस्ट फॉर्मिंग यूनिट भी बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट. ठीक है, ये जो आपको रेड रेड सा दिख रहा है ना, ये एक तरह के समझ लो एंजाइम्स हैं फॉर दीज स्टेप्स. ये इसके रेट ऑफ दिस स्टेप्स को बढ़ा देते हैं. ये इंटरल्यूकिन्स कहलाते हैं, IL. सो IL-1, IL-6, IL-3. IL मीन्स इंटरल्यूकिन्स. ठीक है, then this GM-CSF is granulocyte monocyte colony stimulating factor erythrocyte. ठीक है, ये पूरा नाम है. तो ये हेल्प करते हैं, ये एक तरह के एंजाइम की तरह समझ लो जो रेट ऑफ दिस प्रोसेस को बढ़ाता है. सो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, पिछले स्लाइड में हमने यह बताया था आपको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, फिर कहा था कि कई सारे स्टेप्स होते हैं बीच में, तब जाके एरिथ्रोसाइट बनता है. तो वो कई सारे स्टेप्स ये है. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट के बाद अदनान, which part you want once more, which part? So the enzymes used, that is such as IL-1 and BFUE, that all things. IL refers to interleukin. So these are not enzymes. I am saying they function as enzyme. They are not enzyme. Okay, they are different things. They are proteinaceous in nature and they are exactly not enzymes. They are known as regulators of erythropoiesis. They regulate, they basically hastens the process of erythrophoresis. ये जो है जब ये होते हैं तो erythropoiesis का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, IL refers to interleukin. Please mute yourself. Mute yourself. Sorry, please mute yourself. अच्छा रुको. Zoya, please mute yourself. लोग ना सामान हमारे लिए, अब क्या करें? कंटिन्यू एक ही कमानी, कंटिन्यू पे चेकआउट करें. Okay. This burst forming unit. Pardon? What is burst forming unit? बस्ट कहते हैं बहुत ही प्रिमिटिव अर्लियर सेल को. ठीक है, जैसे ब्लास्ट भी कहते हैं उसको. बस्ट फॉर्मिंग यूनिट इज अ सेल
that is the primitive very earliest cell that is going to make the erythrocyte. अगर burst forming unit erythrocyte बोल रहे हैं तो मतलब very earliest of primitive cell of erythrocyte, जिसको हम blast भी बोलते हैं कभी कभी, blast forming unit. ठीक है? So burst forming unit or blast forming unit means these are the cells that are going to produce other precursors of erythrocyte. मतलब एरिथ्रोसाइट्स तो बहुत लास्ट में बनता है ना, उससे पहले कई सारे सेल बनते हैं, तो उन सारे सेल को ना हम ब्लास्ट सेल बोलते हैं. ब्लास्ट सेल का मतलब होता है इमैच्योर सेल. ठीक है, या बर्स्ट सेल कहते हैं या ब्लास्ट सेल कहते हैं. ब्लास्ट और बर्स्ट सेल का मतलब होता है इमैच्योर सेल. सो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट मतलब दीज आर द सेल्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म द ब्लास्ट और द बर्स्ट सेल. ठीक है, तो बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट मतलब ये बर्स्ट सेल बनाएंगे. बर्स्ट सेल कहते हैं इमैच्योर सेल्स को और द ब्लास्ट सेल्स को. ठीक है. एंड जहां तक IL-1, IL-6, IL-3 की बात है, these are substances that they are known as erythropoiesis regulators. So they are interleukin-1, interleukin-6, interleukin-3. Then GM-CSF is granulocyte, monocyte, colony stimulating factor erythro. These are the substances, जैसे इसका नाम है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, यानी ये जो सेल्स बन रहे हैं शुरुआत के, इनको स्टिमुलेट करेंगे ये सब्सटेंस. ठीक है. सो वी हैव द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट हियर, जो पिछले स्लाइड तक हमने पढ़ा था. उसके बाद जो मल्टीपल स्टेप्स हैं वो ये हैं: प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट. ओके, आई डोंट हैव मच टाइम, 9 बजने वाला है, आप लोगों की अगली क्लास होगी. खैर, सो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट. व्हाई दिस नोन बेसोफिलिक? ठीक है, बेसोफिलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्टेज पे न्यूक्लियस थोड़ा रप्चर कर जाता है और न्यूक्लियर मटेरियल प्लस राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं सेल के अंदर. एंड दिस राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस दे अट्रैक्ट बेसिक डाई. ठीक है, तो बेसिक डाई, तो इसलिए बेसोफिलिक बोलते हैं, यानी बेसिक डाई लविंग. बेसो इज द बेसिक डाई, बेसिक कलर, एंड फिलिक मींस लविंग. तो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक बेसिक डाई लविंग. जो भी ये सेकेंड, फिर ये जो पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट है, पॉली मतलब मल्टीपल, क्रोमैटो मींस कलर, तो मल्टीपल कलर. मल्टीपल कलर क्यों? कि इस पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है. उससे पहले हीमोग्लोबिन नहीं था. ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है. एंड हीमोग्लोबिन इट लव्स एसिडिक डाई. सो सम पार्ट ऑफ द सेल्स दे आर loving basic dye, some are loving acidic dye. Basic dye is usually blue in color, acidic dye is pink in color. ठीक है. सो पॉलीक्रोमैटोफिलिक यानी मल्टीपल कलर्स आपको एक सेल में दिखने मिल जाए. फिर ऑर्थोक्रोमैटिक, ऑर्थो मींस सिंगल, क्रोमा इज कलर, सिंगल कलर हो जाते हैं क्योंकि सारे जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, राइबोसोम होते हैं, वो खत्म हो चुका होता है. अब सिर्फ जो अंदर सेल के बचता है वो हीमोग्लोबिन बचता है. हीमोग्लोबिन इज एसिडिक लविंग, तो पिंक कलर का सेल हो जाता है तकरीबन सब. ठीक है, इसलिए ये डिपेंडिंग अपॉन द सेल एफिनिटी टुवर्ड अ डाई ये हम नाम देते हैं. इसका दूसरा नाम भी है, आप लोग ध्यान दें. अब स्लाइड चेंज होगी और दूसरा नाम आएगा. बेसोफिलिक जो ये था एरिथ्रोब्लास्ट, उसको हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं. फिर पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट को हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट ही बोलते हैं. और ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट को हम लेट नॉर्मोब्लास्ट ही बोलते हैं. तो आपको बुक्स में दोनों तरह की नोमेनक्लेचर मिल जाएगी. कहीं पे नॉर्मोब्लास्ट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं एरिथ्रोब्लास्ट करके, एरिथ्रोब्लास्ट जैसा ये बेसोफिलिक, पॉलीक्रोमैटोफिलिक, ऑर्थोक्रोमैटोफिलिक इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, क्लियर? ठीक है. नाउ दिस स्लाइड शोज द शेप. सर जी बताएं. सर वो जो न्यूक्लियर बर्स्ट और उसके बाद वो जो बेसोफिलिक कंडीशन और एक बार बता दीजिए ना. बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक का मतलब होता है बेसिक डाई लविंग.
बेसिक डाई जैसे हीमेटॉक्सिलिन एक डाई है, डाई जिससे सेल को कलर करते हैं। माइक्रोस्कोप पे देखने के लिए हम सेल में डाई डालते हैं तो वो कलर हो जाता है। बेसोफिलिक का मतलब होता है बेसिक डाई लविंग, ठीक है, जो बेसिक डाई लव करते हैं। और बेसिक डाई थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है। तो बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, इस एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज में ना, जैसे जैसे ये स्टेज हो रहा होता है तो आरबीसी का न्यूक्लियस भी खत्म हो रहा होता है। एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज है यहाँ पर, ये स्टेज, इस स्टेज में न्यूक्लियस जरा टूट जाता है, न्यूक्लियर वॉल और न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वो बाहर रहते हैं, और प्लस सेल के अंदर राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नाउ दिस न्यूक्लियर मटेरियल एंड राइबोसोम्स दे लव द बेसिक डाई, वो बेसिक डाई से कलर होते हैं, इसलिए इनको इस सेल का उस वक्त जो कलर आता है वो these cells they take up the basic dye और ये ब्लूइश कलर के दिखते हैं तकरीबन। तो इनको हम बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज आया पॉलीक्रोमेटोफिलिक। पॉलीक्रोमेटोफिलिक मतलब मल्टीपल कलर्स, यानी आपको ब्लू भी दिखेगा, पिंक भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि एट दिस स्टेज हीमोग्लोबिन इज फॉर्म इनसाइड द सेल एंड हीमोग्लोबिन इज एसिडोफिलिक, एसिड डाई को वो लव करता है, और एसिड डाई जो है वो सेल को पिंक कलर देता है। तो अब इस स्टेज पे आपको कुछ ब्लू दिखेंगे क्योंकि न्यूक्लियस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, न्यूक्लियस का कुछ पार्ट है और कुछ राइबोसोम्स भी हैं, तो दे टेक अप द बेसिक डाई, तो वो सेल को ब्लू कलर देंगे और जो हीमोग्लोबिन है वो सेल को पिंक कलर देगा। तो पॉली कलर्स आएंगे, पिंक येलो ब्लू दोनों, तो इनको पॉलीक्रोमेटोफिलिक बोलते हैं। उसके बाद ऑर्थोक्रोमेटिक स्टेज में न्यूक्लियस पूरा खत्म हो चुका है, राइबोसोम पूरा खत्म हो चुका है, ऑर्गेनेल्स अब नहीं बचे, अब सिर्फ हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का एक ही कलर आएगा, तो ऑर्थो रेफर्स टू वन, तो पिंक कलर के सेल्स दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो मॉडिफाई होकर रेटिकुलोसाइट बनेगा, फिर एरिथ्रोसाइट बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो इन सारे स्टेज को नॉर्मोब्लास्ट के नाम से भी हम जानते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और लेट नॉर्मोब्लास्ट। Now coming to the size, ठीक है। देखो यहाँ ये जो इमेच्योर सेल्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगते हैं उनकी साइज कम होने लगती है। तो सबसे पहला जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट था वो 15 to 20 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे स्टेजेस नीचे आते रहते हैं उसकी साइज कम होती है। तो यहाँ देखो पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन अपीयर्स। सो कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एट विच स्टेज of erythropoiesis hemoglobin appears in the cell for the first time, so that is polychromatophilic erythroblast. Okay, so at this stage, that is polychromatophilic erythroblast, hemoglobin appears in the cell for the first time. Okay, now it's 9, so I think I should leave because दूसरे टीचर्स भी क्लास लेंगे, ठीक है। We'll continue with this in the next term. हालांकि एक टर्न पे मुझे खत्म करना है इसे, बट कोई बात नहीं, we'll continue this with the next term, ठीक है। कोई चीज ना समझ में आई हो तो मोस्ट वेलकम टू व्हाट्सएप, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कोई चीज ना समझ में आई हो। चलो, थैंक यू।